ગાંધીનગર જમીન વહીવટ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન મુદ્દે સંમેલન જમીન રેકોર્ડ આધુનિકીકરણ સેવાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે। સાથે સાથે અત્યારે સીએમ સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા ત્યાં જઈશું। પણ લોકોની મને અહીંયા આવતા હોતા એમ કહેતા કે ભાઈ મહેસૂલ વિભાગ એ સેવામાં હંમેશા લાગેલું હોય, કોઈકની સેવા આવે એટલે લાગે નંબર કોનો, તો કે મહેસૂલ વિભાગનો। કોઈ બી જિલ્લામાં કંઈ બી જાય તો આમ નીચે ઉતરતું આવે। હા, કલેક્ટરને કહે ને કલેક્ટર મામલતદારને, પેલા પ્રાંતને કહે ને પ્રાંત મામલતદારને, મામલતદારથી સીધા નીચે તલાટી સુધીની સેવા પહોંચી જાય કે આવું કંઈક કરવાનું છે। એટલે ખૂબ, અને મહેસૂલ વિભાગને જે સેવા આપવામાં આવી હોય એ સેવામાં ક્યાંય તકલીફ નથી પડી, એટલે આ ચાલુ રહી છે। અને આ વખતે પહેલી વખત જે તમે સેવા કરીને અહીંયા બધા ભેગા થયા છો એ તમારા પોતાના માટે, પોતાના ડિપાર્ટમેન્ટે આ વખતે સેવા કરી છે। બાકી તો બીજા બધા ડિપાર્ટમેન્ટની સેવાઓ આવતી હોય, વીઆઈપી આવતા હોય, ક્યાંક સેવામાં એનો લાભ આપતા હો, પણ ખૂબ સારું મહેસૂલ ખાતું, આપણે કહીએ ને કે મહેસૂલ ખાતું એક એવું ખાતું છે કે જેમાં જો માણસ ફસાયો તો સરકારોય બદલાઈ જાય અને ઓફિસરોય બદલાઈ જાય। પણ હવે એની અંદરથી લોકો બહાર નીકળતા પોતાને એક આશાનું કિરણ તમારા બધા થકી જ મળી રહ્યું છે કે હવે પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ નથી થતો અને ઝડપથી નિર્ણય આવીને એને એનું નિરાકરણ મળી જાય છે। હજુ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જે સુધારા કરવા છે એના માટે આજે આપણે બધા ભેગા થયા છીએ અને ખૂબ સારા વાતાવરણમાં ભેગા થયા છીએ કે ભાઈ જે પણ ફેસિલિટી જોઈએ એ આપણને અત્યારે મળી રહી છે। અત્યારે કલેક્ટર ઓફિસોય જે નવી બને છે આપણને તો કોર્પોરેટ ઓફિસ જેવી, એટલે પહેલું વાતાવરણ જ તમને એવું બનાવે કે ભાઈ ના, આપણે જે કામ કરીએ છીએ અથવા સામેવાળા જે સેવા લેવા આવી રહ્યા છે એ બંનેને સંતોષ થાય એવી ઓફિસો પણ હવે બની રહી છે। એટલે સેવા ખૂબ સારી રીતે સુધરતી રહી છે અને હજુ એની અંદર જે બી નાના મોટા, હું તો કાયમ કહું છું કે આમાં કેવું હોય છે કે શબ્દોની મારામારી હોય છે। વધારેમાં વધારે જો મગજમારી થતી હોય તો આ શબ્દોની, અને એ શબ્દોની મારામારી વધારેમાં વધારે થતી હોય તો મહેસૂલમાં એક કલેક્ટર ઇઝીલી કરી નાખે કે ભાઈ આ બરોબર છે, આટલું આ સમજણ પડે એવી વાત છે, ના કરી નાખો, બીજા કલેક્ટર કરે જ નહીં, ગમે તે ના, આનો અર્થ જ આવો ના થાય કે અરે ભાઈ એટલે હવે આપણે બધાએ શબ્દો એવા શોધવા પડે કે બધાને એનો અર્થ એક જ નીકળે। તો અમારા પંકજ જોશીજી કહેતા હતા કે ભાઈ આ મહેસૂલનો સબ્જેક્ટ છે એટલે થોડોક બોરિંગ ના થઈ જાય, એટલે થોડા હળવા કરી દીધા। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा से निर्मित महात्मा मंदिर का यह परिसर का नाम पूज्य बापू के नाम से जुड़ा है। पूज्य बापू स्पष्ट रूप से मानते थे कि सच्चा स्वराज वही है जहां शासन की कल्याण योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति, गरीब, दरिद्र नारायण तक पहुँचे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शासन को लोकाभिमुख अभिगम और टेक्नोलॉजी से जोड़कर स्वराज से सुराज्य की नई दिशा दी है।
डिजिटल इंडिया, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट पर आज प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से आयोजित यह नेशनल कॉन्फ्रेंस सुशासन के लिए सतत विकास, आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय की आवश्यकता के अनुरूप है। आज लोग को पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश अब बदल रहा है और विकसित भारत बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते 11 सालों में आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त और संपूर्ण पारदर्शी प्रशासन देश को दिया है और सुशासन की दिशा में लैंड रिफॉर्म्स के साथ साथ अनेक नए मापदंड स्थापित किए हैं। हमारी जमीनें हमारी सभ्यता का आधार भी है और अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। जमीन ने किसानों की आजीविका, उद्यमियों के लिए निवेश और लोगों के अधिकार का प्रमाण भी है। ऐसी व्यवस्था को प्राथमिक सुनिश्चित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है। यह प्रोग्राम पारदर्शिता और सुशासन को नए तरीके से परिभाषित करने के साथ देश भर के गरीब, वंचित और जरूरतमंदों को साथ सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित कर रहा है। मोदी जी अक्सर कहते हैं कि अब हमें एक कदम आगे बढ़ाना है, सिर्फ रिकॉर्ड को डिजिटल नहीं करना बल्कि प्रशासन की सोच को भी डिजिटल बनाना है। गुजरात का तो सौभाग्य है कि श्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप का लाभ हमें पिछले 24 सालों से लगातार मिल रहा है। श्री नरेंद्र भाई जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने स्टेट के लैंड रिकॉर्ड का संपूर्ण डिजिटलाइजेशन शुरू कर दिया था। जब देश के अन्य राज्यों के किसान अपने ही रिकॉर्ड्स के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटा रहते थे, तब 2005 में श्री मोदी साहब ने गुजरात में ई-धारा योजना से किसानों की जमीन के रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइजेशन कर दिया था। नागरिक सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की आदरणीय श्री मोदी साहब की गुड गवर्नेंस की विचारधारा से 2011 में राज्य भर में जन सेवा केंद्र की स्थापना नागरिक केंद्रित शासन का एक उत्तम उदाहरण है। पारदर्शी और विश्वसनीय प्रशासन के लिए आई-ऑरा पोर्टल आदरणीय श्री मोदी जी की एक ऐसी पहल है कि इस पोर्टल्स के माध्यम से लैंड रिकॉर्ड संबंधित 35 से अधिक सेवाओं को एंड टू एंड ऑनलाइन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जहां कभी भूमि मापने महीने लगते थे, आज वही काम आई-ऑरा से 21 दिन में पूरा होता है। गुजरात में हमने गरवी 2.0 जैसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से नागरिकों को उनकी घर पर ही सेल डीड, इंडेक्स 2 और लैंड डिटेल डॉक्यूमेंट पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के लिए स्वदेशी उत्पादन और स्वदेशी टेक्नोलॉजी के उपयोग पर बल दिया है। प्रधानमंत्री जी के इस विचार को गति देते हुए बाइजेक, इसरो, NIC जैसी भारतीय संस्थाओं द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी का उपयोग जमीनों के सैटेलाइट मैपिंग और स्वामित्व योजना के लिए किया गया है। लैंड एडमिनिस्ट्रेशन की इन नई पहलों के कारण आज लाखों लोग निर्विवादित रूप से अपनी जमीन के मालिक बन पाए हैं। इतना ही नहीं, जमीन जायदाद को लेकर हो रहे अनेक पारिवारिक विवाद का भी सुखद समाधान मिला है। इन सभी टेक्नोलॉजी के उपयोग से लोगों के समय और श्रम की बचत हुई है और ईज ऑफ लिविंग का विस्तार हो रहा है। इतना ही नहीं, गुजरात ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का बेस्ट एग्जाम्पल सेट किया है। हमने अपनी प्रोग्रेसिव लैंड पॉलिसीज लागू कर विंड एंड सोलर एनर्जी को ग्रीन एनर्जी के लिए सरकारी जमीन का लीज पर अलॉटमेंट और आसान बना दिया है।